So you know that it is a continuation class of determinants, and today we are going to do number h. So which are the sums we are going to do in number h? Please mark the questions. We will be doing today sum number 1, 2, 6, and number 11. You'll find that if we cover these 4 sums, rest sums maybe you might get 1 or 2 doubts here and there, but these are the main sums in number h. अगर हम h नंबर का बात करें तो ये 4 सम सबसे इंपॉर्टेंट सम है, मेन सम, जिसमें नंबर h का 1 आई एम 100% श्योर दैट एवरीवन विल बी एबल टू डू. सो आई एम गिविंग यू टाइम टू ट्राई नंबर h का 1. So let me take LHS, where LHS is AB AX plus BY, BC BX plus CY, AX plus BY, BX plus CY, Z. And we have to show that B square minus AC into AX square plus 2BXY plus CY square, ये हम लोग को शो कर. ठीक है, तो एक बार ध्यान से ट्राई, कोशिश करो, देखो एक बार ध्यान से देखो कि 2 जीरो कैसे ला सकते हैं. जस्ट ट्राई दैट, गिव अ ट्राई. I'll just give you the hint. See, यहाँ पे A है, B है, A B, यहाँ पे आगे तुमको एक बार देख लो, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है. ट्राई करो. So everyone note down. You can think in a very simple way, and what is that? तुम खुद सोचो, यहाँ पे हम लोग कॉलम वाइज भी सोच सकते हैं, हम लोग रो वाइज भी सोच सकते हैं. दैट इज अप टू यू. तो थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग. एक बार आई थिंक बोर्ड विजिबल है ना जो बताना चाह रहे. देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है. देखो दोनों में x मल्टीप्लाइड है, दिख रहा है? चेक वंस. दोनों में क्या मल्टीप्लाइड है बताओ तो? दोनों में x मल्टीप्लाइड है. देखो एक नोट कर. तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी, x है. तो हम क्या करते हैं देखना एक बार. कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 माइनस x टाइम्स ऑफ कॉलम 1. ठीक है, x टाइम्स ऑफ कॉलम 1 माइनस y टाइम्स ऑफ कॉलम 2. समझ में आया? देखो एक बार, इसमें x मल्टीप्लाई करके माइनस, इसमें y मल्टीप्लाई करके माइनस, तो ax और by दोनों कैंसिल किए. सो लेट मी राइट डाउन फर्स्ट कॉलम एज इट इज, मतलब फर्स्ट कॉलम जैसा है वैसे रहने दें. सेकंड कॉलम भी जैसा है, यू जस्ट राइट. And now change column 3 by using this operation. That is column 3 tends to column 3 minus x times of column 1 minus y times of column 2. So here you will get 0. यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 minus x times of ax plus by minus y times of bx plus cy. If you open the bracket, you will get minus ax square minus bxy minus bxy minus cy square. All right, and if you simplify this particular expression, you will get minus ax square minus 2bxy minus cy square. Now let's see. Now let us expand along column. So plus minus plus minus plus minus plus minus plus, मतलब minus ax square minus 2bxy minus cy square into ab bc. मतलब हम लोगों ने कॉलम 3 को लेके एक्सपैंड किया. Expanding along column 3. Let us take minus and common here.
And if you solve this, you get AC minus B square. But do we need answer in this form? No. We need answer in the form B square minus AC. B square minus AC. तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. So you get B square minus AC. Minus into minus becomes plus. So what is the result? B square minus AC into AX square plus 2BXY plus CY square. This is equal to RHS. Alright? Please copy down this. And you can think similarly, you can think row wise also. That is, row 3 tends to row 3. Row 3 minus XC AB, X times of row 1 minus Y times of row 1. तो ऐसे रो वाइज भी सोच सकते हो, तुमको सेम ही रिजल्ट मिलेगा. आई मीन सेम ही कंप्लेक्सिटी भी कोई डिफरेंट, सेम कैलकुलेशन भी इतना ही स्टेप्स में होगा. ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस सम. So everyone note down question number 2. You have to show that this determinant is always negative. मतलब इसका जो determinant value है, it is always negative. We have to show. ठीक है, तो एक बार ध्यान से नोट करो. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABC are all positive. ABC क्या है? सब positive quantity है. And A not equal to B, B not equal to C, means all three are unequal and are all positive. और तीनों positive numbers are all positive. And we have to show that the result of this determinant is always negative. We have to show. तो देखो ये सम को देखने के बाद सबसे पहला चीज दिमाग में आ रहा होगा, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 और रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3. तो सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा है, लेट्स कंप्लीट दिस ऑपरेशन. And please avoid, listen here everyone, avoid this operation, that is column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3 and column 2 tends to column 2 plus column 1 plus column 3. Again column 3 tends to, मतलब ये चीज अवॉइड करना प्लीज. अदरवाइज तुम खुद सोचो, अगर मैं सारे कॉलम्स को ऐड कर रहा हूं और उस रिजल्ट को मैं कॉलम 1 में भी लिख दे रहा हूं, उस रिजल्ट को मैं कॉलम 2 में भी लिख दे रहा हूं, उस रिजल्ट को मैं कॉलम 3 में भी लिख दे रहा हूं, तब तो सारे कॉलम्स ही आइडेंटिकल हो जाएगा. तब तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा ना. सो यू डोंट डू दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. याद रखना, अगर हमने एक ऑपरेशन ऐसा किया ये स्टेप में, तो ये स्टेप में हम और कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं, बट इस लाइन में हम और कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे. नाउ लेट अस टेक a plus b plus c कॉमन. taking a plus b plus c common from column 1. उसके बाद दो जीरो बना दो. रो 1 minus रो 3, so 1 minus 1 will be 0. b minus a, c minus b. Let us expand along column 1. So if you expand along column 1, you get 1 into hide rows and columns. ठीक है, expanding along column 1. अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको कुछ सिंपल कर सकता हूँ कोई ऑपरेशन से? मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 या कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 या रो 1 प्लस रो 2, इस तरह करके कुछ सिंपल बनाया जा सकता है क्या? यस, डू यू हैव एनी आइडिया? लाइक टेल मी कि क्या हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड कर दे तो कुछ सिंपल बन जाए, या सबट्रैक्ट कर दे तो सिंपल बन जाए? मुझे नहीं दिख रहा है. देखो, अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड करें तो वापस से यहाँ पे दो टर्म वाला ही एलिमेंट मिलेगा. देखो एक c माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस c माइनस b. सो इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है. सो लेट अस सॉल्व दिस. इस डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर को सॉल्व करके इसका वैल्यू पे हम लोग फोकस करते हैं.
Okay, now it's your task now to simplify this expression and tell me what you're getting. इस ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है एक बार बताओ तो मुझे। चलो a प्लस b प्लस c तो मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा ब्रैकेट है इसके अंदर क्या है बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। So after you simplify this expression, so as I heard that you will be getting minus a square minus b square minus c square plus ab plus bc plus ac. All right everyone? Yes? अब हम आगे देखते हैं हमको क्या करना है। तो मैं यहाँ पे पहले इरेज कर देता हूँ, और ये स्टेप तक तो मुझे लगता है 100% सभी कोई कर पाएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब सुनिए, देखो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हो गया, यहाँ तक तो आ गया, तक तो प्रूव हो गया, बट एक्चुअली नहीं। देखो ठीक है, ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव, फाइन। तो अगर ए बी सी ऑल पॉजिटिव है तो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए बी और सी ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटीज एंड आर ऑल अनइक्वल, तो ठीक है, तीनों का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो चलो कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव है। लेकिन तुम क्या ये बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या तुम लोग इसका तुम लोग गारंटी, मतलब क्या तुम लोग इसको प्रूव कर सकते हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? हम लोग देख के नहीं बोल सकते ना। यू कैन नॉट से सर यहाँ तो नेगेटिव है, तब तो नेगेटिव ही होगा ना रिजल्ट। हाउ कैन आई से दिस? आई कैन नॉट से दैट दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मेन एक्चुअली पार्ट इसी में, मेन खेल इसी पार्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट को सबको ध्यान से नोट करो, मैं क्या करूंगा। सबसे पहला पार्ट, इन 6 टर्म्स में से मैं माइनस एन कॉमन ले लूंगा। अगर मैं माइनस एन कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया? तो अब देखो नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा देखना, आई विल मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा और 2 हटाने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा। तो यहां पे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। बात तो समझ में? मैंने क्या किया कि 2 मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड किया। 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हटाने के लिए 2 से डिवाइड किया। देखो 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्वल है। ठीक है, अब देखो आप आई वांट योर अटेंशन हियर, नोट डाउन। नाउ वी आर अबाउट टू फिनिश दिस सम, जस्ट नोट डाउन। अब एक बात बताना तुम लोग, यहां पे अगर -2ab है तो बताओ तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रखने के लिए देखो एक बार ध्यान से, यू ऑल नो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इज x माइनस y होल स्क्वायर। यू नो दिस एवरीवन? तो बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं। देखो एक और स्टेप में यूज करता हूं, ठीक है। मैंने 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप में, यहां मैं ओके आई एम राइटिंग हियर। लिसन, यहां पे -2ab, ठीक है। यू नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज हाउ मच? इट इज a minus b होल स्क्वायर। समझ में आया? तो बात अब देखो नेक्स्ट, मान लो मैं अगर 2bc लेता हूं, 2bc, तो बताओ तो इसको किस दो टर्म के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा बताओ तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? c square and c square -2bc है तो वेरी सिंपल, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। मतलब क्रॉस का मतलब है, मतलब मैं सेम साइन यूज कर रहा हूं पेयरिंग करने के लिए, मतलब टिक, मतलब ये तीन टर्म को मैंने पेयर किया। समझ में आया? उसके बाद मैंने -2bc देखा तो मुझे पता है कि मुझे b स्क्वायर और c स्क्वायर के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा, मतलब सेपरेट एक ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। अब उसके बाद बचा क्या देखो तो, बचा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac।
a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस हाफ a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b का होल स्क्वायर b माइनस c का होल स्क्वायर a माइनस c का होल स्क्वायर। चेक वन सेकंड, ठीक है ना। अब बताओ मुझे तुम लोग कि अगर a और b दोनों अलग अलग नंबर्स है, a और b अलग अलग नंबर्स है और दोनों पॉजिटिव है, तो फिर a b और c का जो सम है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये पॉजिटिव होगा। अच्छा एक और बात बताना, a माइनस b का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। सो व्हाट इज सम ऑफ थ्री पॉजिटिव क्वांटिटीज? पॉजिटिव, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। सो व्हाट इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव? नेगेटिव। What do you mean by negative? Negative means, it means therefore determinant a b c b c a c a b, I think यही था, is less than 0। ये तो प्रूव करना था, hence proved। Is this clear or not everyone? Tell me। ठीक है, is always negative प्रूव करना था, is always negative। एक बार इसको कॉपी करो and then we'll see number 6। पहले हम लोग नंबर 12 करेंगे, 12 थोड़ा बड़ा है तो we'll do number 12 first and then number 6। नॉट नंबर 12 नहीं, सॉरी नंबर 11। सर लाइक ऐसा टाइप सम्स बोर्ड लेवल का है क्या? So see in this sum you are given two conditions 1 and 2। इसको प्रूव नहीं करना है, ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो then show that either x equal to 0 और या तो x equal to 0 या तो ये x का मान ये हमको शो करना है। एक और कंडीशन है कि a plus b plus c तीनों का सम 0 होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपैंड करने का हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले हम इसको सिंपल बनाएंगे। क्या? कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 और रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। All right, next let us take this common from column 1, a plus b plus c minus 6 common है। and right taking x plus a plus b plus c, I'm sorry, a plus b plus c minus x common from column। इसके बाद 3 1 है, आराम से 2 0 बना। रो 1 टेंड्स टू रो 1 minus रो 3 0 c minus a b minus c plus x। all right, रो 1 minus रो 3 रो 2 minus रो 3 now let us expand on column 1। ठीक है, और इसमें भी हम देख रहे हैं, सॉरी यहाँ 0, इसमें भी देख रहे हैं कि इसको रिड्यूस करने का कोई ऑप्शंस दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम कुछ भी ऐसा ऑपरेशन करते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 या रो 1 प्लस रो 2 या रो 1 माइनस रो 2 या कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉम्प्लेक्स ही होगा बट रिड्यूस नहीं होगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, इसको सॉल्व करना, इस डिटरमिनेंट को।
और मुझे तुम लोग सॉल्व करके बस इतना बता दो कि क्या है, रिजल्ट क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोग आंसर, ठीक है ना, ये देख कर रहा हूँ, समझ में ना, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, इसका एक्सपेंशन करके जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, यू टेल मी द आंसर आराम से, मतलब पूरा टाइम लेके सॉल्व करके फिर बोलो, क्योंकि रॉन्ग अगर हो जाएगा तो फिर बहुत पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। टेक योर टाइम, चलेगा, इक्वल टू 0 में नहीं आ रहा। तो चलो तो सबको इसको यहाँ तक कॉपी करके और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताओ तो क्या है। So everyone note down, after simplification of this expression in the bracket, we are getting minus a square minus b square minus c square plus ab plus bc plus ac plus x square. And we are finding that product of both these expressions is equal to 0, means this is in the form product 0. So if it is in the form product 0, we can equalize both the factors with 0 separately. We can equalize both the factors with 0 separately now. So either a plus b plus c minus x equal to 0 or minus a square minus b square minus c square plus ab plus bc plus ac plus x square equal to 0. Now what is a plus b plus c? Clearly it is equal to 0. So we are getting x equal to 0. देखो हम लोग को पहला पार्ट मिलेगा, show that x equal to 0 और ना और के बाद वाला पार्ट है, अब हम इसको इससे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है, और के बाद वाला पार्ट मैं इससे प्रूव करने वाला हूं, ध्यान, सेकंड पार्ट से। ये मत सोचना कि मतलब या तो ये प्रूव करना या तो ये प्रूव करना, नहीं, मतलब ईदर द वैल्यू ऑफ x इज दिस और इट इज दिस, ये नहीं, बहुत लोग ये सोच रहा है कि या तो ये प्रूव कर देना है या फिर ये प्रूव, नहीं, वैसा नहीं। Now listen, I am keeping x on the left, I mean x square on the left, sorry, rest all the terms on the right side. So we are getting a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac, or it's better we take minus sign common, ठीक है ना, इस तीनों को राइट में लिया, इसको राइट में लिया तो माइनस साइन कॉमन लेंगे, समझ में ना, माइनस ab माइनस bc माइनस ac से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस ac बच जाएगा, ऑलराइट, वही है। अब यहाँ पे इसके बाद दिमाग लगाओ, हम लोग को आंसर जो है वो हम लोग को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के टर्म में चाहिए, ab प्लस bc प्लस ac के टर्म्स में नहीं चाहिए। तो सुन मैं करता हूं, so this part is very very important. We know that this is the rough part. A plus b plus c का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ तो? You know that it is a square plus b square plus c square plus twice ab plus bc plus ac होता है a plus b plus c का होल स्क्वायर क्या होता है, a square plus b square plus c square plus twice ब्रैकेट में ab plus bc plus ac. Now tell me what is a plus b plus c? is 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। So can I say that this is equal to minus of a square plus b square plus c square? Check once everyone. क्या मैं बोल सकता हूं this expression is equal to minus of a square plus b square plus c square? Yes, समझ में आया तो बात? अब बताओ क्या मैं लास्ट में ये नहीं बोल सकता हूं ab plus bc plus ac is equal to minus half into a square plus b square plus c square? Please check everyone. देखो देखो, ab plus bc plus ac is equal to minus half times ब्रैकेट के अंदर a square plus b square plus c square. समझ में आया तो बात? मतलब हम क्या करेंगे देखना एक बार नेक्स्ट की स्लाइड में।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे माइनस हाफ a square plus b square plus c square. Please show this in the rough part. If you don't show, suppose if it comes in exam, your marks will be deducted because इस स्टेप के बाद तुमने ये स्टेप कैसे निकाला. So for that you have to show the rough calculation here, okay? कि तुमने ab plus bc plus ac का वैल्यू a plus b plus c equal to 0 को यूज करके और तब निकाला है तुमने. Alright, अब देखो प्लीज. Keep it in bracket only, minus minus plus. Take LCM. Now who can tell me 2 times this plus 1 times this will be equal to how much if I ask? So 3a square plus b square. 3 times a square plus b square plus c square by 2. Now tell me अगर x square का वैल्यू ये है, अगर x square का वैल्यू ये है, तो बताओ तो फिर x क्या होगा? Yes. What will be x? Under root 3 by 2 a square. Under root 3 by 2 a square plus b square plus c square. But यहाँ होना चाहिए plus minus. So that's why I think यहाँ पे plus minus proof part में होना चाहिए. But it is understood. चलो ठीक है, plus minus होगा तो ठीक है. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. I think वहाँ कुछ missing है. Plus minus होना चाहिए. Alright everyone. So I hope it is clear now. Alright everyone. Square जब भी हटेगा तो plus minus आएगा. तो plus minus दे देना, वो वहाँ पे plus minus ही होगा. There is some correction in the question. Okay, please copy. Everyone note down number 6. Now tell me everyone, it is given that P, Q, R are not in GP. P, Q and R are not in GP. एक बात बताओ, तुम लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद है क्या होता है? सपोज मान लो 2 है, ठीक है, 4 है, 8 है, 16 है. ये जीपी है या नहीं बताओ तो, क्या ये जीपी है? यस. क्योंकि जीपी में होने के लिए, जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो, दैट इज 4/2 का रिजल्ट, 8/4 का रिजल्ट, 16/8 का रिजल्ट क्या होना चाहिए? हर जगह सेम होना चाहिए. मतलब कॉमन रेशियो हर जगह सेम होना चाहिए. तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि पी क्यू आर जीपी में है, अगर मैं ये बोलूं, फॉरगेट अबाउट क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं पी क्यू आर जीपी में है, तो बताओ तो क्या होगा नेक्स्ट है? Q by P equals to R. Q by P equals to R by. Very good. It is Q by P, मतलब इस common ratio will be equals to R by Q P. square is equals to PR. That is Q square equal to PR. ठीक है. अगर मान लो हम ये नॉट हटा देते हैं और मैं लिखता हूं कि P Q R R in GP. If I say P Q R R in GP, can I say that Q square equal to PR? ठीक है ना? है कि नहीं बताओ? मैंने नॉट हटा दिया. अगर मैं नॉट लगा दिया तो नॉट इक्वल टू पी आर होगा, यही ना होगा? और क्या होगा? तुम दिमाग लगाओ एक बार. अगर मान लो नॉट इन जीपी है, सॉरी इन जीपी है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर होगा. नॉट इन जीपी है तो क्यू स्क्वायर नॉट इक्वल टू पी आर होगा. और कैन आई से क्यू स्क्वायर माइनस पी आर इज नॉट इक्वल टू 0? यस. चलिए तो समझ में आया ना सबको? Yes sir. अब आगे देखते हैं. अब ये समझ कुछ बचा है. और हम लोग को एक और चीज दिया हुआ है, क्या? एंड अ डिटरमिनेंट ये सम को देख के तुम लोग सम नंबर 1 पे दिमाग लगाओ, जो आज तुम लोग नंबर 1 किया आज अभी इस पार्ट टाइम के. इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है. ये कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन. You have to prove that P alpha square plus 2Q alpha plus
r equal to 0. इसको एक्सपेंशन का तैयारी करते हैं, उसके लिए हम लोग 2 0 लाए। तो बताओ तो कोई नंबर 1, मैं वापस बोल रहा हूँ, आज जो तुम लोग सम नंबर 1 देखा था ना, सम नंबर 1 h का 1, और ये सब एकदम से जैसे वहां पे 2 0 लाए थे, यहाँ पे भी वैसे ही है। तो दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए। चलो आई एम वेटिंग फॉर इट। So C3 tends to C3 minus C2 minus alpha times of C1. Very good. Absolutely correct. C3 minus C2 minus alpha times of column. बस हो गया खत्म, और कुछ बचा ही नहीं सभी। कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, और याद रखना ये जब तुम लोग मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब हर 3 मॉडल टेस्ट पेपर में तुमको दिखेगा। ये सब हर तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर में तुमको ये सब जरूर दिखेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी लेवल, है स्कूल लेवल बोलो, बोर्ड लेवल बोलो, एनीथिंग। So let me keep column 1 as it is, because this particular sum tests the concept of GP and the concept of determinants. So column 3 tends to column 3 minus column 2 q by p कर दिया, और minus alpha times of column 1, तो alpha alpha भी कर दिया। मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे क्या आएगा देखना है, 0 minus column 2 minus alpha times of column 1, ब्रैकेट हटा दे। So we are finding that we have minus p alpha square minus 2q alpha minus alpha, क्या मिला यहाँ पे, minus of p alpha square plus 2q alpha plus alpha। All right, now nothing is left, let's expand now column 3. Into expanding along column 3, ठीक है। This into this minus this into this, so we have minus of p alpha square 2q alpha plus r, you take LCM you get pr minus q square by pq by pq equal to 0। अब ये फॉर्म में आ गया ना, प्रोडक्ट 0 के फॉर्म में, so either minus of p alpha square plus 2q alpha plus r equal to 0, प्रूव हो गया ये चीज। therefore p alpha square plus 2q alpha plus r equal to 0, ये प्रूव हो गया। और pr minus q square by pq equal to 0, but you find that q square minus pr is not equal to 0, देखो है कि नहीं, q square minus pr is not equal to 0, so you can simply write it is not possible, is not possible। समझ में मेरी बात क्लियर हुआ? तो देखो q square minus pr, एक बात बताओ, a minus b not equal to 0 को b minus a not equal to 0 नहीं लिख सकते हम लोग? a minus b not equal to 0 को if I multiply minus a in both sides, can I write b minus a not equal to 0? So same way q square minus pr not equal to 0 or pr minus q square not equal to 0, it's same thing। So pr minus q square is not equal to 0, so यहाँ पे लिख रहा है equal to 0, अपना solution में equal to 0 आ रहा है, but this is not possible, so this is your proof part, hence possible। You can write out the reason, बगल में लिख सकते हैं since pr minus q square not equal to 0, या ऐसे ही लिख सकते हैं since p q r are not in G। So I hope you all have understood this sum, you can please copy it down। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एक लाइन ही था, तुम अगर ध्यान दो तो पिछले सम में भी यहां तक आया ही था,
ये सब में भी यहां तक है, बस एक्स्ट्रा क्या है कि ये चीज को मुझे इग्नोर करना है बिकॉज ये 0 के बराबर नहीं हो सकता ये। और ये तुम्हारा प्रूफ, ओनली दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग। So please copy down, and this way we will end our today's class.